अस्सलाम वालेकुम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات گرامی، وہ انسان بڑا ہی خوش نصیب ہے اور بڑے اچھے مقدر والا ہے جس پہ حق ظاہر ہو اور وہ اس کو پہچان کر کے اس کے پیچھے چل پڑے اور اس کے سامنے جھک جائے، اور دنیا میں اس جیسا نصیبوں کا مارا ہوا شخص بھی شاید کوئی نہ ہو کہ جس کے سامنے حق ظاہر ہو اس کو وہ پہچان بھی لے، لیکن اس کو ماننے، تسلیم کرنے، اس کے سامنے جھکنے، اس پہ لبیک کہنے، اس کی اتباع کرنے، اس کو ماننے کی بجائے اس کے سامنے اڑ جائے اور اس کے خلاف محاذ کھول لے. دنیا کے معاملے میں ہر انسان ہر چیز کے بارے میں ایک ذہن رکھتا ہے اور اس کے بارے میں اس کا ایک معیار بناتا ہے. معیاری چیزیں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا میں، مارکیٹ میں، بازار میں، منڈی میں مجھے معیاری چیز ملے، اور اس کے لیے وہ چھان پھٹک بھی کرتا ہے، تلاش بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، جد و جہد بھی کرتا ہے، دنیا سے پوچھتا بھی ہے اور اہل علم سے اور اہل خبرہ سے اور تجربہ کار لوگوں سے مشورہ بھی کرتا ہے. یہ ہمارا دنیا کا معاملہ ہے. یہ معیار اور یہ معیاری چیز ہر انسان کی اپنی ایک سوچ اور حد تلک ہوتی ہے. وہ اس وقت تک غیر معیاری چیز کو ہاتھ نہیں ڈالتا جب تک کہ مجبور نہ ہو، اور اگر بادل نخواستہ مجبوری پہ اس غیر معیاری چیز کو وہ لے گا بھی نہ تو لوگوں کو بتائے گا کہ آج میرے ساتھ ایسے ہوا، میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، بڑی اچھی چیز کی تلاش کی، معیاری کی نہیں مل سکی. یہ کسی معاملے میں ہو، کسی میدان میں، کسی فیلڈ میں ہو، انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے. مثال سے سمجھیے، اسکولوں میں، کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں داخلے شروع ہوتے ہیں. ہر کالج، ہر ادارہ، ہر یونیورسٹی، ہر اسکول اپنا ایک معیار مقرر کرتا ہے اور اس کو میرٹ بناتا ہے، اور اس میرٹ کے مطابق دنیا کے سامنے وہ اعلان کر دیتا ہے کہ یہ ہمارا میرٹ ہے، اس پہ ہم جو معیار پہ لوگ پورے اتریں گے، جو طالب علم، جو اسٹوڈینٹس، ان کے اندر یہ صلاحیت، یہ لیاقت ہوگی، ہم ان کو لیں گے. اور اکثر ہوتا بھی ایسے ہے، الا ماشاء اللہ، کہ کہیں پہ سفارش اور رشوت کا دور دورہ نہ ہو. انسان اپنے بنائے ہوئے اس میرٹ کو، اس معیار کو سامنے رکھ کے بسا اوقات ایک ایسے طالب علم کو چن لیتا ہے، لے لیتا ہے، جو دیکھنے میں بظاہر اتنا لائق، اتنا قابل، اتنا صلاحیت اور لیاقت والا محسوس نہیں ہوتا، لیکن مد مقابل دوسری طرف ایک اور آدمی ہے، اور شخص ہے، اور طالب علم ہے، اور اسٹوڈنٹ ہے. اس کو یہ لوگ رد کر دیتے ہیں، حالانکہ ظاہری طور پہ جسمانی اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، سوچ سمجھ اور بصیرت کے اعتبار سے اس لڑکے کے اندر، اس اسٹوڈنٹ کے اندر صلاحیتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، لیکن صرف ایک خامی ہوتی ہے کہ وہ میرٹ پہ پورا نہیں ہوتا، رد کر دیا جاتا ہے. ہم ایسے لوگوں کو برا نہیں کہتے جو یہ کام کریں، دنیا میں ہم کرتے ہیں. ایسے ہی ہر انسان نے ادنا سی چیز کو لے لے، آپ نے حتیٰ کہ صبح دہی بھی خریدنی ہے نا، تو انسان کے ذہن میں ایک معیار ہوتا ہے جو تجربوں کی روشنی میں اس نے بنایا ہوتا ہے کہ میں نے فلاں دکان سے جا کر کے دہی خریدنا ہے، اس کی دہی اچھی ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے، اس میں ملاوٹ نہیں، وہ زیادہ کھٹی نہیں ہوتی، اور یہ زیادہ مجھ کو سوٹ کرتی ہے، خواہ وہ دکان اس کے گھر سے کہیں زیادہ دور کیوں نہ ہو. اور اگرچہ دکان کی ظاہری حالت اتنی معیاری نہ ہو، لیکن چیز کے معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کرتے ہیں. ایسے ہی آپ کپڑے سلواتے ہیں، موسم کی تبدیلی ہے، آپ بھائی کپڑا خریدنے سے لے کر کے سلوانے کے معاملے تلک کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا آدمی جو مارکیٹ میں معیاری سلائی کرنے والا ہو، آپ اس کے پاس جاتے ہیں کہ ظاہر ہے پیسہ لگانا ہے، وقت لگانا ہے،
कपड़ा देना है, कहीं ऐसे इंसान के सामने न चला जाऊं, उसके माथे न लगूं जो मेरी चीज को भी बेकार कर दे। और फिर भाइयों, अगर अल्लाह ना करे हम एक मेयार देते हैं कि इसके मुताबिक आपने कपड़े की सिलाई करनी, और उससे गलती हो जाए, कुताही हो जाए, कोई कमी रह जाए, हम उसको सिला देने की बजाय उल्टा क्या है, शुक्रिया अदा करने की बजाय डांटते हैं कि देख यार, मैं सबको छोड़ के तेरे पास आया था, सुना है तेरा काम मेयारी होता है, तू साहिब फन है, फन को जानने वाला है, लेकिन सिलाई को जरा देख, गैर मेयारी। इसी तरह भाइयों, आप किसी मामले में देख, दुनिया के बिल्कुल गए गुजरे लोगों को आप देख ले, ये फिल्म होती है, अखबारों पे आप पढ़ते हैं, क्या है जी, ये फिल्म हिट नहीं हो सकी, सिनेमाओं में इस फिल्म पे रश नहीं रहा जी, क्यों नहीं रहा? आगे उसकी फिर तौजीह लिखी होती है कि ये गैर मेयारी। भाई क्या मेयार है उसका? मेयार लोगों ने बनाया कि अगर अदाकार और अदाकारा, हीरोइन और ये उसके मुकाबले में हीरो, अगर ये इस स्टाइल में जो मेयार मेरे जहन में, मेरे मुआशरे ने बनाया है, उसके मुताबिक उसकी अदाएं, उसकी हरकतें, उसके नाज अंदाज होंगे तो वो फिल्म सही है, अगर उससे हटके है तो वो मेयारी नहीं। हालांकि उसको बनाने वाले लोगों ने पता नहीं कितनी मेहनत की होती, कितनी उन्होंने रातें, उनकी नींदें बर्बाद की होती, कितना सरमाया लगाया होता है, और क्या तवक्को होती है कि ये काम मेयारी हम कर रहे हैं और हमें इसकी कामयाबी की उम्मीद है। लेकिन सराहतन हकीकत में मार्केट के अंदर जब आती है तो लोग उसका फिर फैसला करते हैं कि ये चीज मेयारी है या गैर मेयारी है। ये हम इंसानों की निस्बत, लेकिन भाइयों, उस खालिक ने जिसने हमको बनाया है, क्या वो हमारे काम, हमारे आमाल, हमारी अदाएं, हमारे नाज, हमारे अंदाज, हमारे तौर, हमारे अतवार, हमारे तरीके, हमारे सलीके, ये अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर ही होते जाएं, हम जिस तरह जो मर्जी करते जाएं, अल्लाह ताला उसको कबूल कर लेते हैं। एक इंसान, एक आदमी, एक अदना सी सोच और जहन रखने वाला, मामूली सी हैसियत का मर्द और औरत जो है, उसको जो मेयार उसके जहन में बना हुआ है, उसके खिलाफ कोई चीज मिले कबूल नहीं करता, रद्द कर देगा। रिश्ते का मामला हो, लड़के का मामला हो, लड़की का मामला हो, दौलत का मामला हो, ओहदे का मामला हो, किसी भी चीज के अंदर आप दुकान मकान किसी चीज को दुनियावी एतबार से ले लें, अगर उसको मेयारी नहीं मिलती जो उसने मेयार बनाया है उसके मुताबिक, तो यकीन कीजिए ये इंसान उस चीज को रद्द कर देता है, अगरचे वो अच्छी भी हो। लेकिन हमारे खालिक और मालिक ने हमें इस दुनिया में भेजा, सही पूछिए भाइयों, अल्लाह ने किस लिए भेजा? क्या हमें इल्म नहीं? इल्म है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, अल्लाह वो जात है जिसने मौत और जिंदगी को बनाया। मौत और जिंदगी क्यों बनाई? किस लिए बनाई? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ये देखना चाहते हैं कि दुनिया की मार्केट में रहते हुए, इस जिंदगी में रहते हुए, इन अय्याम में, इन शब रोज में जो ये बसर करता है, इसकी अदाएं कैसी होती हैं, मेयारी हैं या गैर मेयारी। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ये जानना चाहते हैं, अल्लाह को इल्म है, अल्लाह हमारी तरह नहीं कि दर्जी जब तक सी के दिखाएगा नहीं, सिलाई हमारे सामने नहीं आएगी, हमें उस वक्त तक पता नहीं चलेगा। अल्लाह का मामला ये नहीं, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान पे उसके मामले को हुज्जत बनाना चाहते हैं। कहीं ये ना कहे अल्लाह, मैंने, अगर तू मुझको मोहलत देता मैं ऐसे करता, बगैर मोहलत दिए, बगैर मुझको टाइम दिए, बगैर वक्त दिए, अल्लाह ताला तूने खुद ही जन्नत और जहन्नम के फैसले कर लिए, ये कैसे हो सकता था? अल्लाह ताला ने इंसान पे हुज्जत बनाने के लिए उसके अमल को मतलूब कहा कि ये मकसूद है, लेकिन अमल ओपन नहीं छोड़ा, आम नहीं रखा। जिस तरह जिसका दिल चाहे, जो मर्द जो खातून जिस तरीके से चाहे, जिस वक्त चाहे, जिस अंदाज से चाहे, नहीं भाइयों, उसके लिए एक मेयार मुकर्रर किया है। अगर वो उस मेयार पे पूरा उतरता है और इंसान की ये जिंदगी, उसके ये अय्याम, उसके शब रोज, उसका ये हयात, उसकी हयात का ये पीरियड, अगर ये उस मेयार पे, उस मेरिट पे पूरा है जो अल्लाह ताला ने बनाया है, तो इस इंसान के लिए खुशकिस्मती है, कामयाब है ये इंसान। लेकिन अगर एक इंसान दुनिया में अपने मेरिट का तो ख्याल रखे कि मेरा ये मेरिट बनाया हुआ है, इससे कम चीज को मैं कबूल नहीं करता, और अपने मेयार की वो कदर करे, दुनिया में उससे कम मेयार वाली चीज ना ले, लेकिन जो उसका खालिक और मालिक जो उससे चाहता है, जो उससे डिमांड करता है, जो मुतालबा करता है, जिस तरीके से उसको देखना चाहता है, ये अपने खालिक का ध्यान न रखे, कहे वहां सब कुछ चल जाएगा, तो इसकी ये गलती है। बहरहाल इसको कुछ सोचना चाहिए। भाइयों, ये शाबान का महीना है, ऐसे अक्सर भाइयों को तो इस्लामी महीनों के नाम ही नहीं आते, और अल्हम्दुलिल्लाह है मुसलमान। यहूदी और ईसाई महीने का नाम पूछा जाए, उंगलियों के पे गिन के बच्चे बता देंगे। नहीं भाइयों, इस्लाम से इतनी दूरी, इतनी बेवफाई अच्छी नहीं है। कम अज कम आपको इस्लामी शायर जो हैं उनका इल्म तो होना चाहिए, ताकि आपको अगर कोई गैर मुस्लिम इस्लाम की इब्तिदाई
और बुनियादी चीजों के बारे में, अकायद और मामलात के बारे में, मालूमात के बारे में पूछ ले तो आपको वो तो हूं। दोस्तों, शाबान का महीना, ये वो महीना है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर रोजे रखा करते थे। मेरे मुल्क की बदकिस्मती है, यहां पे दीन के नाम से, इस्लाम के नाम से कुछ आयात, कुछ मवाके, कुछ अय्याम ऐसे आते हैं जिनमें भाई दीन का नाम लेकर के दीनी महफिलों को रचाते हैं। मैंने बदकिस्मती इसलिए कहा कि जहालत भी एक बदकिस्मती की किस्म है। भाइयों, अक्सर दोस्त धोखे की बात में रहते हैं। ये बात दुख की नहीं कि एक आदमी को पता हो और फिर वैसे आदमी काम करे दीन का समझ के और वो दीन का ना हो। मैं समझता हूं ये बड़ी बदकिस्मती। हमारे यहां 15 शाबान को शबरात के नाम से एक रात मनाई जाती है। आज मैं उसके अमाल के हवाले से तो खैर बात नहीं करूं, उसमें क्या क्या अमाल, क्या क्या औरात, क्या क्या वज़ाइफ, क्या क्या फज़ाइल उसके बयान किए जाते हैं। ये गुज़िश्ता और उससे पिछले साल अल्लाह की रहमत से इसकी पूरी डिटेल और पूरी तफसील जो है भाइयों के सामने रखी जा चुकी है और वो केसों की शक्ल में मौजूद है। लेकिन मैं जिस चीज का जायजा लेना चाहता हूं और आप भाइयों और बहनों की तवज्जो दिलाना चाहता हूं, उनमें से एक वो काम है जिसको हम आतिशबाजी का नाम देते हैं। दोस्तों, गली गली में, महल्ले महल्ले में, कूचे कूचे में, घर घर में, छत छत पर इसके मुजाहरे होते हैं। और शबरात के दिन, जिसको मुसलमानों का बड़ा अहम तरीन मौका और बड़ी अहम रात, मगफरत वाली रात बाबर कराया जाता है और ये नाम देके, शबे बरात का नाम देके, लैलतुल बरात का नाम देके पेश किया जाता है। उस रात वल्लाह पूरे मुल्क अजीज के एक एक महल्ले, शहर और गली और घर घर का, जब अगर सिर्फ सरसरी जायजा लिया जाए तो यूं महसूस होता है कि इस मुल्क में कोई मुसलमान नहीं रहता, सारे लोग आतिश परस्त और मजूसी, सबके सब। ये क्यों हुआ? ये महज इत्तेफाक से हो गया? ये कोई इत्तेफाकी हादसा है कि सब लोग इस जगह पे चले और इस राह और इस लाइन को ले लिया? नहीं भाइयों, इसके पीछे एक लंबी सोच, लंबा टाइम, एक लंबा अरसा और उसके पीछे एक बहुत बड़ी तहरीक, और तहरीक भी इस्लाम के नाम पे, और फिर वो भी मुसलमानों के लिए। अल्लाह ताला हमें इससे बचाए। इसलिए मैंने आज जिस मौजू को मुंतखब किया है वो हालात पे इंशाअल्लाह अज़ीज आपकी जरूर रहनुमाई करेगा। आए, हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि ये शब रात, आज छोड़ दें इस चीज को कि क्या इस रात की कुछ हकीकत, कुछ फजीलत है जिसको लोग बावर कराते हैं। मेरे भाइयों, इन चीजों को छोड़ के एक साइड पे रख के इसके फजाइल जो लोग बताते हैं, जो आपको काम बताते हैं, उनको भी सामने रख लें और फिर इसकी अहमियत और फजीलत को सामने रखते हुए फिर आप इस रोज हर मुसलमान के, इस रोज इस रात हर मुसलमान के घर से उठने वाली आवाज और उठने वाली रोशनी का जायजा लें। क्या इस रात के लिए हमने यही तैयार किया? अगर ये नेकी की जगह है, नेकी का मामला है, मगफरतों की घड़ियां हैं, बरात के मामले हैं, अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत को माफ करना है, तकदीरें बदल देनी है, तो क्या हमारी हालत को देख के क्या हमारी हालत ऐसी है कि अल्लाह हमारी तकदीर बदलेगी? हर छत यूं महसूस होता है ये मुसलमान की छत नहीं, किसी मजूसी की छत है, वो मजूसी। दोस्तों, आपको इल्म होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए कि फारिस के अंदर बड़े बड़े आतिश कदे, बड़े बड़े आतिश कदे और आतिश परस्ती का काम करते हैं, बड़े बड़े आतिशबाज, बड़े बड़े फनकार इस मैदान के अंदर उतरे हुए, जिन्होंने कभी इस आग की चिंगारियों को बुझने नहीं दिया। इन्हीं आतिशों से तंग आकर के बेजार होके एक आदमी उस वक्त जनाब सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शक्ल में उस आतिश कदे को बनाने वाला, भड़काने वाला, जलाने वाला, आग देने वाला, हवा देने वाला और उसके लिए दिन रात का दौ करने वाला, उसकी रोशनी और अलाओं को जो है बुलंद करने वाला ये शख्स उससे बेजार होकर नफरत खा के हटा हत्ता के मदीना में पहुंचा और सहाबी बन गया। लेकिन आज का मुसलमान कलमा पढ़ने के बाद क्या है, फिर उन्हीं लाइनों पे आकर के यहां तक लौट गया कि उसका पूरा मुआशरा यूं महसूस होता है कि वो फारिस का एक शहर है या उसका एक इलाका है जहां खुशी के मौके पे मजूसियों के अलावा इनको कोई और तरीका नहीं आता। नहीं भाई, जब उलमाए किराम से बैठ के गुफ्तगू होती है तो मट्टी झाड़ने वाली बात होती है, कह देते हैं मौलाना हम कब कहते हैं, हम तो इस बात का नहीं कहते। दोस्तों, सच्ची बात है, ये हमें तो धोखा दिया जा सकता है। भाई, अगर उलमाए किराम इसकी दावत नहीं देते, ये दीन नहीं, ये सही नहीं, ये काम गलत है, ये खुशी के अंदाज नहीं, खुशी के तरीके नहीं, ये अदा मुसलमानों वाली नहीं, ये तरीका मुसलमानों वाला नहीं, तो फिर मुसलमानों के मुल्क के अंदर ये कैसे आया? कौन करते हैं इसको? बेचने वाले क्या बाहर से हमने इस्राइल से यहूदी मंगवाए? कौन बेचता है? इसका कारोबार कौन करता है? या वो अमेरिका से आए हुए ईसाई लोग, या वो नसरानी और इसी तरह
पारसी लोग हैं, या वो इंडिया से आए हुए हिंदू या इसी तरह सिख हैं। भाइयों, हमारे लोग, हमारे मुआशरे में रहने वाले, कलमा पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दावे करने वाले, ये मुसलमान ही को बेचते हैं। नहीं जी, हमने कब कहा? अच्छा भाई, जिनकी जेब से पैसा निकल रहा है ईमान से बताएं ये कौन लोग? ये हमारे वालिदैन जिनसे हम लेते हैं, ये हमारे बहन भाई, ये हमारे वडेरे। क्या ये इसराइल के यहूदी हैं या इंडिया के हिंदू हैं कि जिनको ये इल्म नहीं, या जिनके दीन के अंदर, जिनके मुआशरे के अंदर, जिनके मुआमले के अंदर, जिनके तौर तरीके के अंदर, जिनकी रसूम और रिवाज के अंदर ये बात तहरीर है, सबक है कि अगर इस रात को ये अंदाज ना अपनाए गए, जो रोशनियां, यूं धमाके और पटाखे और शुरलियां ना छोड़ी गई, अल्लाह ताला इस अदा को, अमल को पसंद ही नहीं करेंगे। और अगर मेरे मकान की छत से शुरली और पटाखों की आवाज ना आई, लोग कहेंगे इसने शबे बरात को माना नहीं, इसके घर में खुशी नहीं, इसके घर से रोशनियां नहीं उठी, चिराग बुझ गए, ये इंसान भी बदबख्त इंसान है। लोग कहीं तसव्वुर न करेंगे पैसे दे रहा है, कौन है मुसलमान? भाइयों, इसी तरह जो बच्चे ये खरीद के ला रहे हैं, खरीदने वाले कौन है? किन के बच्चे हैं? यहूदियों के हैं, काफरों के हैं, किसी नसरानी और ईसाई के बच्चे हैं, या किसी मसीही की औलाद है? किन के हैं आखिर ये हिंदुओं से तो नहीं हम लेके आए। हमने शादियां की, अपने इलाके के उलमा से निकाह पढ़वाए, मुसलमानों वाले नाम रखे, कलमा पढ़ाया उनको, और उनके लिए हमने मेहनतें की, सुबह शाम कमाया उनके लिए इस्लामी स्टेट के अंदर, और इस्लाम का दावा करते हुए आखिर ये बच्चे जो कर रहे हैं, हम इनको नहीं रोकेंगे तो कौन रोकेगा? ये कह देना जी हम तो नहीं चाहते, बेजारी भी होती है। दोस्तों, सच्ची बात है, हम बड़े मुनाफिक ठहरे। अगर हम इस निफाक को छोड़ दें और इतना मुखलिस ना हूं दीन के बारे में कि जितना इस्लाम हमसे चाहता है, हम सिर्फ इतने मुखलिस हो जाएं जितना हिंदू अपने मजहब के बारे में मुखलिस है, तो अल्लाह की कसम मुसलमान दुनिया में कभी जूते ना खाए। हिंदू बड़े बड़े मुकामों के ऊपर आके डिप्लोमेसी करेगा, कंप्रोमाइज कर जाएगा, लेकिन जहां अकीदे और उसके मजहब की बारी आएगी, वो वहां किसी किस्म की नरमी और लचक नहीं खाएगा, वो अपना काम करेगा, दिखाएगा। सिख को देख ले, सिख हैं, जहां मर्जी चले जाएं। हत्ता के एक वक्त ये भी था, सिखों ने फ्लाइट के अंदर अपनी किरपान को जो है वो मंजूर करवा लिया। आपको मालूम है, फ्लाइट के अंदर किसी किस्म का छोटा सा औजार, हत्ता के नील कटर जो है, कोई हल्का फुल्का चाकू, कोई औजार लेना, लेके जाना मना है, सब चेकिंग होती है। लेकिन सिखों ने अपनी किरपान को अंदर ले जाने के आर्डर मंजूर करवाए। क्यों? इतना लंबा हथियार। कहा कि ये हमारा मजहबी एक अलामत और शियार है, हम इसको छोड़ के सफर नहीं कर सकते। लेकिन ये आज का मुसलमान है, इसकी खुशी, इसकी गमी, इसके मौके, इसकी आयात, इसके जितने भी ये सिलसिले हैं, ये इसके लिए इस्लाम ने कोई तरीका नहीं बताया। भाइयों, आप दोस्तों को हैरान होकर के ये बात सुननी पड़ेगी कि ये आतिश परस्ती ये मुसलमानों का काम नहीं, ये आतिशबाजियां ये मुसलमान नहीं करते, ये अल्लाह के बंदे नहीं करते। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भेजा, फारस के आतिश कदे ठंडे करिए, ठंडे हुए कि नहीं हुए? खत्म हो गए, मिटा दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अंदाज को। अल्लाह के लिए ये शबरात आने वाली है कि नहीं? आखिर ये लोग, ये बाजारों में बेचने वाले, या तो किसी का भाई या किसी का वालिद या किसी का बेटा, किसी का अजीज है ना। आप प्यार से, अच्छे अंदाज से, भाई तू कलमा पढ़ता है, मुसलमान है, अगर हम तुमको नहीं बताएंगे कौन बताएगा? जरा कोशिश कर, जरा सोच, तेरा दीन क्या है, तेरा इस्लाम क्या है, तेरा कलमा क्या है, वो तुझसे क्या डिमांड करता है, अल्लाह का मेयार क्या है, तेरे काम क्या होने चाहिए, तूने क्या करना था, क्या कर बैठा, तेरा कारोबार कैसा होना चाहिए। अगर आज हमारे यहाँ कोई आदमी ऊंची जात का हो ना, और बड़ी आला जात का हो, और वो बाजार में आके जूते सीने लग जाए या सिर्फ जूते पालिश करने लग जाए, वल्लाह सिर्फ उसके रिश्तेदार नहीं आएंगे, बिरादरी का जो आदमी भी उसको जानता होगा आएगा, आके कहेगा यार तू तो बिरादरी का नक जड़ा जमीन से मिला देता, मट्टी में मिला दिया तूने, खाक में मिला दिया, इस बिरादरी का ये काम नहीं था जो तू कर रहा है। और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, हमारे दोस्तों में से एक दोस्त ने होटल खोला, उसकी बिरादरी के लोग कहने लगे तेरी बिरादरी का ये काम नहीं, क्यों करता है ये? दोस्तों, अगर हम ये करते हैं तो मुसलमान से आला और अरबा दुनिया में कोई और मजहब है? इस्लाम से आला जब कोई मजहब नहीं, मुसलमान से अल्लाह ने आला कोई और इंसान दुनिया में बनाया नहीं, तो फिर इसको शर्म नहीं आती कि कभी अपने भाइयों को तवज्जो ही दिला दे कि मुसलमान तुझसे बढ़ के, तेरे दीन से बढ़ के, तेरे इस्लाम से बढ़ के दुनिया में कोई और आला और अरबा मुकाम है, तो उनको छोड़ के, उसके मामलात को छोड़ के तूने गैर मजहब के मामलात को फरोख्त करना और उन पे अमल करना शुरू कर दिया। लेकिन भाइयों, सिर्फ तवज्जो की खामी है, हमने तवज्जो नहीं दिलाई, तवज्जो दिलानी चाहिए। इसके कई पहलू हैं। आपका बच्चा अगर आपसे ये डिमांड करता है तो उसको बड़े अच्छे अंदाज से उसकी ब्रेन वॉशिंग कीजिए, उसको समझाइए कि बेटा तू भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान, तूने एक मुसलमान वालिद और वालिदा की घर में जन्म लिया है और तू कलमा पढ़ने वाला है। जिस नबी का कलमा पढ़ता है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिस रब को हम मानते हैं उस अल्लाह का एक मेरिट है, एक मेयार है। ये काम इस्लामी मेरिट और मेयार पे पूरा नहीं उतरता बेटे, भाई, दोस्त, इस काम से बाज आ जा, कोई और अच्छा काम कर ले, इस दिन को नेकी का काम कर ले। अगर तूने करना ही है लामहला, कुरान मजीद को पढ़ ले, अल्लाह को मना ले, तिलावत कर ले, अपने जो किए हुए गुनाह और पाप हैं, जो लफ्ज़ी हैं, जो गलतियां हैं, तन्हाई में बैठ के जरा उन पे नजर डाल, गिरेबान के अंदर झांक, रो जरा अपने आंसू को बहा, ताकि अल्लाह तेरी इस हालत को देखे, मेरे बंदे ने आज मेरे तरफ रुजू किया है, इनामत की है, गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, आंसू बहा रहा है, मेरे सामने हाथ उठा रहा है, मुझसे मांग रहा है। मैं अहकमुल हाकिमीन होके, रब्बुल आलमीन होके और बादशाहों का बादशाह होके, गफ्फार होके, सित्तीर होके, लोगों को बख्शिश करने वाला और गफ्फार ज़ुनूब होकर के अगर इसके गुनाह न बख्शूं तो बात नहीं है। मेरे ख्याल में ये तेरे लिए खुशकिस्मती का बायस होगी। लेकिन ये पटाखे, ये शुरलियां, मेरे भाइयों, जिस भाई के ज़हन है, अकल है, शऊर है, थोड़ी सी बसीरत रखता है और तड़प वाला दिल रखता है, अल्लाह की कसम इस रात वो बड़ा परेशान होता है। कितने मरीज हैं जो इन पटाखों की नजर और बड़े ही परेशान होते हैं। कितने नमाजी हैं जिनकी नमाज में उनको ये सुध-बुध नहीं होती कि हमने सुबहाना अल्लाह पढ़ा था, उसके बाद पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। नमाज के अंदर वो मजा नहीं, वो खुशू नहीं, वो सुकून नहीं। बाजारों में चलती हुई हमारी माएं और बहनें इसी खबासत की नजर होती हैं कि एक बेटी बड़ी शरीफ खानदान की औरत गुजरती है, उसके पांव के नीचे से पटाखा बजता है और वो किस तरह से, इस तरह से कि गोया उसके साथ किसी ने बहुत बड़ी हरकत की है, बेचारी डर के मारे हुए बाजार के अंदर उछलती है और लोग उसको देख के हंसते और मुस्कुराते हैं और उसके बाद कह के छूटते हैं, आखिर हमने इसको अपनी बहन नहीं समझा या इसको मुसलमान नहीं समझा। भाइयों, इस्लाह कौन करेगा? बाहर से अल्लाह मखलूक उतारेंगे, कोई नए लोग आएंगे, कोई और मजहब बाकी रह गया है जिसको अल्लाह ने भेजना है। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना व मन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम व ला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया। और इसी तरह अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। भाइयों, ये सारी दावतें इसीलिए हैं कि लोगों इन मेयारों को सामने रख के, इस मेरिट को सामने रख के अपने घर की इस्लाह करें, औलाद की इस्लाह करें, अजीज व अकारब की इस्लाह करें, गली मोहल्ले की इस्लाह करें, अपने अकायद की, अपनी बुनियादों की इस्लाह करें, ताकि वो मेरिट पूरा उतरे, आप उस मेरिट पे पूरे उतरे जिसको अल्लाह देख के आपको कामयाबी या नाकामी का सर्टिफिकेट हाथ में थमाएंगे। ये इतनी सी तमहीद थी जिसको मैं इस मौजूदा मुनासबत के हवाले से, वगरना भाइयों इसमें क्या कुछ नहीं होता। आप भाई मुझसे कहीं बेहतर जानते हैं। जो कदम उठाएं उसके उठाने से पहले आने वाली जरा बातें देख लें। ये अल्लाह का कुरान है। इसके 15वें पारे के अंदर जिन भाइयों को थोड़ी बहुत नींद करीब से गुजर रही है, जरा जागे, जरा होश में आए। सोने के लिए रातें बड़ी लंबी होती है, बहुत लंबी रातें हैं आजकल। बिल्ला के हमारे घर में कोई जगाने वाला ना हो। मुझे इस बात की तो हैरानी नहीं है कि शादीशुदा लोग सोते हैं, ये नौजवान तबका क्यों सोए जिनके लिए पूरी लंबी रातें सोने के लिए होती। जी भाइयों, ये क्या है? अल्लाह का कुरान है, लेकिन हम इससे वो फायदा नहीं उठाते जो उठाना चाहिए था। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी कि एक मोमिन आदमी जो है हर जुमे को इसके 15वें और 16वें पारे के अंदर एक सूरह कहफ आती है, वो पढ़े। ऐसे भाइयों, हमें तो पता ही नहीं, हमने पढ़ी। आज जिन जिन भाइयों ने पढ़ी है, रिया के लिए, नमूद और दिखलावे के लिए नहीं, जरा इतना बताने के लिए ताकि पता चल सके, हम अपना इम्तिहान ले सके, अपना एक एहतसाब कर सके। जिन भाइयों ने पढ़ी है सिर्फ वो अल्लाह के लिए हाथ खड़े कर दें। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप लोग, अल्लाह की कसम कि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तादाद तो देखने में आई। मैं तो ये उम्मीद कर रहा था शायद बहुत कम हो। ये सूरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमे के रोज पढ़ा करते थे, आपने तालीम दी। कभी आपने बैठ के सोचा ज़हन में कि हर जुमे 8वें दिन इसको आखिर क्यों पढ़ा जाए? क्या चीज है इसमें? भाइयों, इसमें जहां और बड़े लंबे लंबे मजमून हैं और बड़ी बड़ी नसीहत और इबरत वाली चीजें हैं, वहां एक ऐसी चीज भी है जिसको हमने मेरिट कहा है और मेयार कहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस मेरिट का और मेयार का तज़किरा किया है और कामयाब होने वाले और नाकाम लोगों का तज़किरा किया है। हर 8वें दिन इंसान को पढ़ने की तलकीन इसलिए की गई कि मुसलमान तेरी नजरों से कहीं ये मेरिट ओझल ना हो जाए और मेयार तेरी नजरों से दूर ना हो जाए, और तू कहीं ये ना समझ बैठे कि मैं दुनिया में जो करूंगा, मेरी हर अदा, मेरा हर अमल, मेरा हर काम, मेरा हर तरीका, मेरा हर सलीका, मेरे हर तमाम के तमाम अतवार अल्लाह ताला उनको कबूल कर लेंगे, शर्त कबूलियत से नवाजेंगे। नहीं दे, मैंने कुरान मजीद में ऐलान ही नहीं किया हर 8वें दिन तू अपने निगाहों से पढ़ता है। इस कुरान मजीद के अंदर तुमको बताया है कि मेरे बंदे, अगर तेरे आमाल जो है मेरिट पे पूरे उतरेंगे मैं कबूल करूंगा। नहीं तो अल्लाह ताला ने इसी सूरत के आखिर के अंदर भाइयों इस अंदाज से ऐलान किया, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीना आमाला। लोगों, ये पैगाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों में ऐलान कीजिए, कहिए कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीना आमाला। आप इस सूरत की तिलावत कर रहे हैं कि हम आपको ऐसे लोगों के बारे में ना बता दें
बिलअक्सरीन आमाला, जिनके आमाल बर्बाद गए, खसारे में गए, घाटे में गए, उनकी मेहनत, उनकी कावश, उनकी जिद्दोजहद, उनकी तमाम तर तवानाइयां और उनकी मसाई जितनी भी थी सब की सब जो हैं खाक के अंदर मिल गई। हम ऐसे लोगों के बारे में ना बताएं। बिलअक्सरीन आमाला अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया, ऐसे लोग जिनके किए की उनको जज़ा और उसका अजर और सवाब हमने सिर्फ दुनिया की हद तक रखा। अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया, उनकी सारी मेहनत दुनिया के अंदर कारक हो गई। उसकी नमाजें, उसके रोजे, उसके आमाल, उसके सजदे, उसके फराइज, उसकी सुनन, उसके नवाफिल, उसकी मेहनतें, उसकी काज से सारी की सारी दुनिया में रह गई। जब वो हमारे पास आया तो उसका कोई अमल इस काबिल नहीं था कि परवाज करके हमारे पास चल के आ सके। अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ, और उनके गुमान में ये बात थी कि हमसे अच्छा कोई अमल करने वाला नहीं। व हुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ, उनके ख्याल में, उनकी सोच में, उनकी फिक्र में, उनके जहन में, उनके दिलो दिमाग में, उनके कल्बो जिगर के अंदर इस बात को बिठा दिया गया था कि लोगों तुमसे आला, तुमसे अरफा, तुमसे बेहतर, तुमसे अच्छा अमल किसी और। अल्लाह कहते हैं हमने उनके अमाल को कारत कर दिया। दोस्तों, जो आदमी खुली आंखों से और फिर खुले दिल के साथ और फिक्र और अकल के साथ इन आयात से गुजरेगा, क्या वो नहीं सोचेगा कि मैं अपने अमलों को देख लूं, मेरे अमाल कैसे, कहीं वो तो बर्बाद नहीं, अल्लाह के यहाँ कबूल भी है कि नहीं, मेरिट पे उतरते हैं कि नहीं, मेयार पे पूरे उतरते हैं कि नहीं। और भाइयों, इसी तरह एक और सूरत है जिसको इमाम हर जुमे दूसरी रकत में पढ़ता है, हर 8 दिन के बाद। क्या नाम उसका? हाँ जी, सूरतुल गाशिया। क्या मजमून है इसका? ये हर जुमे क्यों पढ़ी जाती है? इमाम साहब दूसरी रकत के अंदर इसको क्यों दोहराते हैं? क्यों हर 8 दिन के बाद इस मजमून को इंसान के ऊपर से वो चाहे या ना चाहे, जो आए इस मस्जिद में आए, अल्लाह के घर में आए, जुमे के लिए आए, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जमाने के अंदर, जमाने नबूवत के अंदर, वही के अय्याम के अंदर इस सूरत को पढ़ पढ़ के लोगों के ऊपर से गुजारा करते थे, सुनाया करते थे। क्या मकसद था इसका, आखिर क्या इतनी अहमियत थी? भाइयों, उसमें भी इसी चीज को बावर कराया गया है, एक मेरिट बताया गया है कि आदमी दुनिया में रहते हुए तुम्हें कम से कम अगर फुर्सत नहीं मिलती, 8 दिन के बाद जब फारिग होकर तो अल्लाह के लिए टाइम निकालता है, तो इस दिन ही सोच ले कि तेरे अमल कैसे हैं, उनका मेयार पे पूरा उतरने वाला कोई मामला है भी कि नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हल अताका हदीसुल गाशिया, हल अताका हदीसुल गाशिया। ऐ पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम लेकिन खौफ उसी को आता है जिसके सीने के अंदर दिल हो, दिल में खौफ और डर हो। हल अताका हदीसुल गाशिया, आपको उस दिन की, उस रोज की खबर नहीं पहुंची जिस दिन आने वाली चीज सबको ढांप लेगी। गाशिया, वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया, जब वो आएगी ना क़यामत, वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया, उस दिन बड़े बड़े बेशुमार चेहरे जो हैं उनके ऊपर खौफ होगा। खाशिया, खशियत तारी होगी, डर होगा, रोब होगा, रंग फीके पड़े हुए होंगे। वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया, यूं होगा कि जैसे इनको पता नहीं कितना बड़ा घाटा पड़ा हुआ है। वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया, इनके ऊपर पता नहीं कितना बड़ा रोब है, कितना बड़ा इनका जुर्म है। वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया, इंसान समझता है कि ये अल्लाह से दुनिया में डरने वाले बंदे होंगे। अल्लाह फरमाते नहीं, वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा, ये वो लोग हैं, ये बदकार भी नहीं, जिनाकार भी नहीं, चोर भी नहीं, ठग भी नहीं, डाकू भी नहीं, गलतकार भी नहीं, दुनिया में डाके डालने वाले नहीं, रिश्वत लेने वाले नहीं, सूदखोर नहीं, ये अल्लाह के बड़े बड़े मुजरिम नहीं है। वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया, के ये डर रहे हैं, दुनिया में गुनाह किए थे, अल्लाह ताला आज हमको पूछेगा, हमारी गलतियों की सजा देगा। अल्लाह कहते हैं आमिलतुन नासिबा, कि ये वो लोग हैं जो बड़े दीनदार और दीन के पाबंद लोग थे। आमिलतुन, सिर्फ दीनदार दावे के नहीं थे, आमिलतुन, ये नेक अमल करने वाले लोग, आमिलतुन, ये सिर्फ कलमा पढ़ने वाले नहीं थे, नमाजों का हक अदा करने वाले नमाजें पढ़ा करते थे, आमिलतुन, क़याम करने वाले, आमिलतुन, रुकू करने वाले, आमिलतुन, सजदों में गिर जाने वाले, आमिलतुन, रब के सामने झुकने वाले, आमिलतुन, अल्लाह के लिए अमल करने वाले, आमिलतुन, रब के लिए तबलीग करने वाले, आमिलतुन, रब के लिए देने वाले, सदकात, खैरात, जिहाद, हर किस्म के मामले के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले। आमिलतुन, सिर्फ इतना नहीं, फरमाया नासिबा, और अल्लाह के लिए अमल कर करके अपने आप को थका देने वाले लोग। ये नहीं कि सिर्फ फर्ज पढ़े और भाग गए, ये नहीं कि सिर्फ फर्ज ज़कात दी और चले गए, इतना नहीं कि सिर्फ फर्ज हज किया और खत्म। आमिलतुन नासिबा,
اللہ کے لیے اپنے آپ کو قائم اور دائم رکھنے والے، حتیٰ کہ اپنے آپ کو تھکا دینے والے اور تھکاوٹوں سے یہ چور ہو جانے والے، اپنے بدنوں کو تھکا تھکا کے سزا دینے والے، کس لیے کہ اے جسم تو دنیا میں آزاد پیدا نہیں ہوا، تو نے کل قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، کچھ عمل کر لے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بولو عاملۃ ناصبہ، اللہ ان کو جزا کیا دے گا؟ جنت ملنے والی ہے، جنت الفردوس ملنے والی ہے۔ یہ دنیا میں 70 حوروں کی اور 100 حوروں کی امید لگائے ہوئے لمبے لمبے قیام کرنے والے یہ لوگ، یہ اللہ تیرے راستے میں جہاد کرنے والے، زکات دینے والے، حج کرنے والے، عمروں پہ عمرے کرنے والے، مولا تیری راہوں میں بڑے اچھے عمل کرنے والے، اب ان کو جنت دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں غلط فہمی نہ رہی ہے، دنیا کے اندر بتا رہا ہوں، ہر آٹھ میں روز بتا رہا ہوں، امام پڑھ کے سنا رہا ہے، تم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو، میں تم کو یاد دہانی کراتا ہوں، اگر تم یاد دہانی کے بعد پھر بھول جاؤ تو مقدر تمہارے غلط، میں نے ظلم نہیں کیا، میں نے حق بات کو پہنچا دیا۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، میرے رب کا اعلان ہے، وہ رب جو سکی ماں سے کئی گنا زیادہ رحیم اور کریم اور شفیق ہے، اپنے بندوں کے ساتھ مہربان ہے، وہ اللہ فرماتے ہیں تصلی نارا حامیہ، میں ایسے بدبخت انسانوں کو، ایسے نیکوکاروں کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالوں گا۔ دوستو یہ ہر جمعے کا پیغام، ہر جمعے کا عاملۃ ناصبہ۔ اب آج کا میرا یہ جمعہ ان لوگوں کے لیے تو نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہے، کیونکہ وہ دوست ہم میں تشریف نہیں رکھتے، جو نیک عمل نہیں کرتے، جو مسجدوں میں نہیں آتے، جو نماز نہیں پڑھتے، جن کو جمعوں کی توفیق نہیں ہوتی۔ میرا یہ آج کا خطاب میں ان بھائیوں سے، ان بہنوں سے مخاطب ہوں جن کے زندگی کا شیوا یہ ہے کہ وہ نیکی کرنے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، اللہ فرماتے ہیں صرف دھڑکتی اس گرم آگ کے اندر، شعلے مارتی لپکتی آگ کے اندر ان کو صرف ڈالوں گا نہیں، کیا فرمایا مولا کریم نے؟ تصلی نارا حامیہ، ان کو پیاس لگے گی نا، یقیناً پانی مانگیں گے، اور میں رب بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، کریم بھی ہوں، مہربان ہوں، رؤوف ہوں، شفیق ہوں۔ اللہ کے بارے میں بڑے بڑے اچھے معاملے ان کے ذہن میں تھے، میرے لیے یہ ساری ساری رات قیام کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجود کرنے والے، نیکیاں کرنے والے، صدقات دینے والے، خیراتیں کرنے والے، اللہ کے لیے مساجد بنانے والے، مدارس بنانے والے، نیکیاں کر کر کے اپنے آپ کو تھکا دینے والے، آئے سنے میں ان لوگوں کی مہمان نوازی کس طرح کرنے لگا ہوں۔ تسقیٰ من عین آنیہ، جب یہ پانی کی بوند مانگیں گے ایک ایک بوند کو ترس کے رہ جائیں گے۔ تسقیٰ من عین آنیہ، ان کو پانی بھی ٹھنڈا نہیں نصیب ہوگا۔ آج تو دنیا کے اندر فریج سے نکال کے پی لے، جب پیاس لگی ہو بیوی سے مانگے، بیوی نہ دے، اس کو دو چار گالیاں دے دے، ڈانٹ پلا دے، لیکن تیرے رب کی ہاں تیری مہمان نوازی، اے نیک عمل کرنے والے بندے اللہ کے سامنے تو ہوگا۔ تسقیٰ من عین آنیہ، اللہ تجھ کو گرم ابلتے کھولتے ہوئے چشموں کا پانی۔ اللہ نے جھوٹ تو نہیں بولا بھائی، لیکن ہمیں رب پہ یقین نہیں، آج کے مولوی پہ یقین نہیں، اس لیے کہ اس کی باتیں اپنی ہوتی۔ بھائیو اس پہ تو یقین کر لو جو احکم الحاکمین ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا ہے، جس کے قانون میں تبدیلیاں نہیں، جس کی اگر رحمتیں وسیع ہیں، ان بطش ربک لشدید کے اعلان بھی اسی کے ہیں۔ لوگوں اپنے رب کی پکڑ سے بچو جس کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ دنیا میں اس سے بڑھ کے بدبخت انسان کون ہوگا کہ مزدور صبح سے لے کے شام تک محنت کرے، تغاری اٹھائے، اور یہ امید ہو کہ میرے بچے گھر میں انتظار کر رہے ہیں، ابھی ہنڈیا چولہے پہ نہیں چڑھی، میں جاؤں گا گھی لے کے جاؤں گا ان کے لیے کچھ خرید کر کے، سبزی وغیرہ لے کے جاؤں گا، گھر جاؤں گا ہنڈیا چولہے پہ چڑھے گی، ان کے پیٹ کی جہنم کے اندر کچھ جائے گا، وہ ٹھنڈی پڑے گی۔ شام تلک محنت کرتا رہا، لیکن جب مزدوری لینے کی باری آئی تو اس کے مالک اور آقا نے اس کو اجرت نہ دی۔ یقیناً یہ بدبخت انسان ہے کہ نہیں؟ یہاں دو ہی کام، یا تو مالک کی زیادتی، ظالم ہے، سارا دن کام کروایا اجرت نہیں دے رہا، یا پھر یہ ہے کہ اس مزدور نے ویسے محنت نہیں کی جو اس کو کرنا چاہیے تھا، وہ کام نہیں کیا جو مالک کو مطلوب تھا، ناراض ہو کر کے اس نے اس کو اجرت نہیں دی، شکریہ ادا کرنے کی بجائے اس کو ڈانٹ دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے۔ میرے بھائی تیرے رب کے بارے میں یہ خیال تو ہو نہیں سکتے کہ اللہ ظالم ہے، معاذ اللہ، وہ ہمارے عمل کی اس کا اجر، اس کی اجرت اور اس کی مزدوری کو رکھ لیں گے، ہمیں پورا نہیں دیں گے۔ اللہ تو وہ ذات ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، لوگوں لمبے لمبے عمل کی بات نہیں، جس نے ایک ذرے کے برابر بھی میرٹ کے مطابق عمل کر لیا نا، ایک ذرہ، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ اللہ قیامت کے دن اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کی مزدوری، اس کی اجرت اس کو دنیا کے سامنے دکھا دیں گے اور عطا کر دیں گے۔ لیکن یہ کون؟ محنتیں کرنے والا، دین کے لیے اور اسلام کے لیے اور تگ و دو کرنے والا، شب و روز قیام کرنے والا، اس انسان کو اللہ جہنم میں پھینک کے پانی مانگ رہا ہے، پانی نہیں دے رہے، مل رہا ہے تو کھولتے چشمے کا پانی۔ ایک آدمی نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا اور سارا دن وہ آپ کے لیے ورک کرتا رہو، ووٹ مانگتا رہو، اور شام کو جب آپ کے ڈیرے پہ آ کے بیٹھے آپ اس کو ٹھنڈا پانی نہ پلائیں تو آپ کے بارے میں کیا جذبات رکھے گا؟ میرے بھائی اور آپ کے بارے میں یہ جذبات رکھنے کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کر رہے، لیکن اس کا قصور اتنا بڑا تھا۔ تسقیٰ من عین آنیہ، اللہ فرماتے ہیں لیس لہم طعام الا من ضریع، بھوک بھی لگے گی، یقیناً لگے گی، مانگیں گے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، میرے خالق کے پاس خزانوں کی کمی نہیں، پھلوں کی کمی نہیں، رزق کی کمی نہیں،
सिमार की कमी नहीं, मेरे पास बहुत कुछ अल्लाह के बड़े बड़े खजाने हैं, लेकिन क्या है, लैसा लहुम ताअमुन इल्ला मिन ज़री, अल्लाह कहते हैं मेरे पास उनके लिए सिवाय कांटेदार दरख्त के अलावा कोई और खाना ही नहीं। क्या अल्लाह कंगाल हैं? अल्लाह के खजानों में कमी है और कोई खाना नहीं होगा क़यामत के दिन? लैसा लहुम ताअमुन इल्ला मिन ज़री, लोगों अल्लाह फरमाते हैं कांटेदार झाड़ियों के अलावा, छितर के अलावा मैं इन जालिमों को खाना भी नहीं दूंगा। क्या ये खा करके क्या करेगा इनका? ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू। लोगों गौर से सुन लो, दुनिया के अंदर आप खाना खाते हैं, कैलोरीज की फिक्र होती है, इसमें पावर होगी, ताकत पैदा होगी, खाएंगे, कुछ मेहनत करेंगे, काम करेंगे, कमाएंगे, लेकिन ये खाना मिलेगा पहले तो खाया नहीं जाएगा, गलों से नीचे नहीं उतरेगा, अगर कहीं उतर भी गया, ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू, ना ये इंसान को मोटा करेगा, ना उसका गोश्त और हड्डियां बनाएगा, ना उसकी भूख मिटाएगा। ये पैगाम अल्लाह ने हमें नहीं बताया, ये दरस अल्लाह ने हमें नहीं दिया। ये नसीहतें किन के लिए? हिंदुओं के लिए उतरी थी, भाइयों मुसलमानों के लिए उतरी। हम अगर किसी को इबरत का निशाना बनते हुए देख के भी इबरत ना पकड़े तो हमसे ज्यादा बदबख्त कौन होगा? ये कौन लोग थे? अमल करने वाले नहीं थे। दोस्तों, बस सवाल उठा कि इन लोगों ने क्या किया? अल्लाह ने इनकी सारी मेहनतें, काविशें, इनके अमल, इनकी नेकियां, उनका कोई मूल नहीं डाला, कोई उनको उजरत नहीं दी, कोई अजर नहीं मिला, सवाब नहीं मिला, महरूमियां ही महरूमियां, नकामियां ही नकामियां और परेशानियां ही परेशानियां हैं। क्यों हैं? दोस्तों, एक ही जवाब है कि इन लोगों के पास अमल तो था, बड़ी बड़ी डिग्रियां थी, बड़े बड़े इनके पास होते थे, लोगों ने इनको बड़े बड़े मरातिब दे रखे थे, लेकिन वो मेहनत जो अल्लाह ने बना के दुनिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए भेजा था, जिसका इन्होंने इकरार किया था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के कि अल्लाह हमारे सामने यही मेहनत है, यही मेयार है, दुनिया में जो काम करेंगे इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए और उसका तरीका सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला। कलमा पढ़ते हुए इन्होंने लचक नहीं खाई थी, माना था इस मेहनत को और ऐलान किया था। दुनिया के अंदर ज़ाहिरन ये पढ़ा करते थे कलमे को, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन जब अमल की बारी आती थी, प्रैक्टिकल मैदान में उतरे थे, अमली तौर पे ये फेल हो गए, वो मेरिट उस पे पूरे ना उतर सके। तो मुझको मतलब था भाइयों, मेरिट भी बता दूं थोड़े वक्त के अंदर आए, आपने जो भी कदम उठाना है, दुनिया का मामला हो, दीन का मामला हो, अल्लाह के लिए हो, किसी मामले से हो, भाइयों जिसको आपकी अजर की उम्मीद हो, सवाब की उम्मीद हो, जन्नत की उम्मीद हो, अल्लाह के खजाने बड़े वसी, उसकी जन्नतें बड़ी वसी, अल्लाह की रहमत भी बड़ी वसी, लेकिन अल्लाह ताला के कानून भी बड़े सख्त। अल्लाह अपने कानून के भी पाबंद है। अल्लाह पाबंद नहीं, इंसानों को पाबंद कर दिया कि लोगों पाबंदी करोगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने ज़हन में रखना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मेरिट और मेयार बताया वो सिर्फ और सिर्फ दो चीजें अपने ज़हन में बिठा लें। पहली चीज, आप कोई कदम उठाने लगे, नेकी का कोई काम करने लगे हैं, किसी अमल के लिए मैदान में आने लगे हैं, आप उठने लगे हैं, आप हरकत में आने लगे हैं, कदम या पांव हिलाने लगे हैं, सबसे पहले देख लें कि उसमें इखलास पाया जाता है कि नहीं। अगर इखलास है तो खुशी खुशी कदम को उठाइए, अपने साथ बाकी भाइयों को भी लेके चलिए, लेकिन दोस्तों अगर उसमें इखलास नहीं, अल्लाह की कसम उस कदम को रोक लेना आपके हक में बेहतर है उठाने से, अगरचे वो नेकियों से मामूर क्यों ना हो, अमाल से भरा हुआ क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह के यहाँ उसकी कोई जो कीमत और अजर और मूल नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर अमल को तो यूं ही कबूल नहीं करना। दोस्तों, वो पहली चीज इखलास है। इसीलिए अल्लाह ने जो कुरान में सूरतें उतारे उनमें से एक सूरह इखलास है, जिसका आपने अल्फाज पढ़े हुए हैं, बल्कि हर नमाज में पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, पढ़ते हो कि नहीं? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हर मर्द हर औरत पढ़े, इस चीज का अरबी में तो इकरार करे, लेकिन जब पंजाबी में, उर्दू में, अरबी में उसकी तशरीह या उसके इकरार करने की बारी आए तो वो कह दे जी मेरे मसलक, मेरे मजहब, मेरे दीन में ऐसे नहीं। जो इकरार तेरा नमाज में हुए मेरिट और मेयार और कसवटी पे पूरा उतरेगा तो अल्लाह ताला उसको शर्फ कबूलियत से नवाजेंगे, वगरना तेरा ये कुल हुवल्ला पढ़ना, अल्लाहुस समद पढ़ना, लम यलिद पढ़ना, वलम यूलद कहना, वलम यकुल लहू कुफुवन कहना, ये तोते की तरह रटे रटाए कलेमात तो हो सकते हैं, इसके अलावा इसकी कोई अहमियत नहीं। भाई, मेयार के अंदर हुस्न पैदा कर, सोच समझ पैदा कीजिए। अल्लाह ने तालीम दी कुल हुवल्लाहु अहद, लोगों में एक अल्लाह हो, मेरी तौहीद का इकरार कर लो, मेरी तौहीदों के डंके बजा दो, उसके फरेरे लहरा दो, अलम को बुलंद कर दो, दुनिया के अंदर मुझको बड़ा कर दीजिए। वरब्बा का फकब्बिर, ये तालीम दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आपने पारान की चोटियों पे चढ़ के अल्लाह की तौहीद का इकरार किया और करवाया, रहती दुनिया तक लोगों को बता दिया, लोगों अगर रब है कायनात का तो सिर्फ एक रब है, देने वाला, लेने वाला, बिगड़ियां बनाने वाला, दोस्त को दुश्मन बनाने वाला, दुश्मन को दोस्त बनाने वाला, बेटों से नवाजने वाला, बेटियां देने वाला, बाज बनाने वाला, लोगों को मुल्क को मिल्लत देने वाला, रुतबे और ओहदे देने वाला। कायनात के अंदर अगर कोई हस्ती है तो सिर्फ एक अल्लाह की हस्ती है, कोई और। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद,
अगर किसी के जहन में, उसके अकीदे में, उसके अमल में ये बात पाई जाती है कि अल्लाह का कोई और हमसर है, अल्लाह बारिश देता है वो भी देता है, अल्लाह ठीक है बारिश के साथ, अल्लाह औलाद देता है, फुला पीर भी देता है, अल्लाह ताला इन चीजों से नवाजता है वो भी देता है, अल्लाह मदद करता है वो भी करता है, और इस तरह के ये मामले अगर अल्लाह के अलावा इस शख्स ने किसी और के साथ बना लिए, दोस्ती को रचा लिया, अकीदे को अपना लिया, अल्लाह की कसम फिर अबू जहल को देखो, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्तेदार है, आपका चचा है, कुरैशी खानदान है, मक्के का शहर है, हरम का इलाका है, बैतुल्लाह के दवारे हैं, तवाफ करता है, गिलाफों को पकड़ता है और उसके इर्द गिर्द घूमता है, उम्रे पे उम्रे करता है, हज पे हज करता है, हाजियों की खिदमत करता है, उनको सद्दू पिलाता है, मशरूब पेश करता है। लेकिन ये सारे काम न थे, ये अमल न थे, ये अल्लाह के साथ मुआमले न थे, ये क्यों करता था? लेकिन क्या अल्लाह ताला ने उसकी कुरैशियत को देखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्तेदारी को देखा, या उसके इन अमाल को, हज को और उसके तवाफों को और बैतुल्लाह की उसकी तवल्लियत को, इन मामलात को अल्लाह ताला ने अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया, दुनिया की हद तक रहने दिया, कल क़यामत के दिन उसका कोई अजर कोई मूल न पड़ा। तो भाइयों, हम क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के उसके ज्यादा अजीज हैं कि अपनी मर्जियां करते फिरेंगे? और अपने पास बेशक तौहीद हो या ना हो, इकरार कर लें जुबानी, लेकिन अमल की बारी आए तो हम सबसे पीछे हों। मेरे भाइयों, जिस अमल के अंदर इंसान के इखलास नहीं, इखलास की सबसे पहली चीज ये है कि तौहीद हो। अगर तौहीद नहीं तो उसका ये अमल यूं ही समझ ले कि सिर्फ दुनिया की हद तलक है, कल क़यामत को अल्लाह उसका कोई अजर नहीं डाले। इखलास में पहली चीज तौहीद। तौहीद की 3 किस्में आपको इल्म है। पहली के उलूहियत, इलाह, इबादत, मुआमला सिर्फ अल्लाह का। दूसरी रुबूबियत के देना लेना, मारना, जिंदगी अता करना, जिंदगियों को लेना, बादशाह बनाना, बादशाहियां छीनना, ये सारे अल्लाह के मामले हैं, किसी और के इख्तियार में नहीं। और तीसरी चीज तौहीदुल अस्माई व सिफात, अल्लाह के जो नाम जिस तरह उसको लायक, जो सिफात उसकी जिस तरह उसको लायक, जिस तरह उसकी जात के शायान शान और मुनासिब है, हम वैसे का वैसे उस पर ईमान लाते हैं। इस इखलास के साथ, इस अकीदे के साथ, इस तर्ज के साथ, इस फिक्र के साथ, इसको मानना ये इखलास का एक जुज है। इखलास उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक उसमें दूसरी चीज न पाई जाए, और वो है नफी। किस चीज की नफी? अल्लाह के अलावा हर एक की नफी। कौन सी नफी? ला इलाहा इल्लल्लाह वाली नफी। कौन सी नफी? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तेरे अलावा कोई और इलाहा नहीं। पहले इनकार सबका, नहीं कोई और इलाहा तेरे अलावा है अल्लाह। ला इलाहा, कोई नहीं, अल्लाह कोई माबूद नहीं, कोई हाकिम नहीं, कोई बादशाह नहीं, अल्लाह तेरे अलावा कोई हाजत रवा नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं। अल्लाह ऐसे मामले में, तेरी सिफात में, तेरी जात में, तेरी रुबूबियत में, तेरी उलूहियत में, तेरी सिफात के अंदर, मुआमलात के अंदर, तसर्रुफात के अंदर, तेरे अहकाम के अंदर, फरामीन के अंदर, ऐ अल्लाह मैं किसी और को शरीक नहीं बनाता। यही माना है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह तेरा कोई हमसर नहीं। मैं मुसलमान होने की हैसियत से, कलमा पढ़ने वाले मुसलमान की हैसियत से, कुरान पढ़ने वाले मुसलमान की हैसियत से अल्लाह ऐलान करता हूं कि मेरा जो अमल है इस अकीदे के साथ है कि तौहीद अल्लाह के लिए, और इस तौहीद में खलल इस अंदाज से नहीं आने दे रहा कि अल्लाह तेरे अलावा जितने भी शिरक के दरवाजे खुलने वाले थे, मैं उनको बंद करके सिर्फ तेरी जात को मानता हूं, किसी को तेरा शरीक नहीं ठहराता। अभी भी इखलास मुकम्मल नहीं हुआ जब तक कि इसमें तीसरी चीज न दाखिल कर ली जाए। वो ये है कि इंसान का अकीदा तो यही है कि तौहीद सही है और मैं उसको मानता हूं, तौहीदी ज़हन है, तौहीदी अकीदा है, शिरक भी नहीं करता। लेकिन क्या करता है, नेकी का जब वक्त आता है ना, उस वक्त ज़हन में सोच लेता है मैं अगर सदका दूंगा कोई नहीं जानेगा, सदका देता हूं, अखबार में खबर दिलवा दूं, शैतान आया चल के देख, अगर खबर दिलवाएगा कुछ लोगों को और देख के उनको भी जरा इस पे रगबत होगी, उनको तरगीब दिला दूं, अखबार में दिलवा, तुझको देख के शायद कोई और भी दे ले, तुझको सवाब मिलेगा। हकीकत में ये मशवरा देने वाला शैतान था जिसने इसके अमल को बर्बाद कर दिया। सिलाई मशीन दे दी थी, बेवा के हाथ पे रखी, फोटोग्राफर को कहा फोटो ले ले, फोटो लेने के बाद वो बाकी थैले, बाकी मशीनें वापस, और खबर लग गई अखबार के अंदर। देख मेरे भाई, ये नेकी, ये मामले, ये सारे सिलसिले अल्लाह ताला ऐसे अमाल को भी कबूल नहीं करते, वो जितने मर्जी अजीम क्यों ना हो, अगर उनमें दिखलावे और नमूद और नुमाइश की बू आने लगे। कितनी मर्तबा आपने वो हदीस सुनी है जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली, जिसको बयान करने से पहले 3 मर्तबा गशियां खा के गिरे। पहला इंसान कौन है? कारी किताब है, कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाला, दुनिया में सबसे अच्छा काम करने वाला। लेकिन जब अल्लाह के सामने जाता है, अल्लाह उसका ये अमल, उसकी ये नेकी, उसकी सारी तिलावतें, अलिफ लाम मीम से लेके वन्नास तक की मंजिलें, उसके सारे मामले अल्लाह ताला ये कह के रद्द कर देते हैं, मेरे बंदे देख, तूने तो ये इसलिए किया था ना, दुनिया में तुझको, दुनिया को दिखाने के लिए, नुमाइश के लिए और नमूद के लिए, दुनिया ने देख लिया, उन्होंने बल्ले बल्ले कर दी। आज मेरे पास तेरे इस अमल की कोई उजरत नहीं, कोई कीमत नहीं, उसको उठा के जहन्नम में डाला जाए। दूसरा आएगा सखी सखावत करने वाला, माल देने वाला, दौलत देने वाला, सदकात खैरात करने वाला, अल्लाह उसके साथ ये मामला करेंगे। तीसरा जिहाद लेके आएगा, अल्लाह उसके साथ ये मामला करेंगे। दोस्तों, इसलिए इखलास के लिए जरूरी है और इस मेहनत पे उतरने के लिए कि पहली शर्त, आप जो काम करने लगे हैं देख ले कि वो उसमें इखलास है कि नहीं। इखलास क्या है? तौहीद हो, शिरक ना हो और उसमें नमूद और नुमाइश और रिया ना हो। अगर आप एक जर्रा देते हैं, तौहीद पे लेके देते हैं, शिरक से बरात करके देते हैं और फिर खालिसतन अल्लाह के लिए बगैर नमूद के देते हैं, ये उससे कहीं बेहतर है कि आप करोड़ों दे लेकिन उसमें ये तीनों मर्ज़े पाई जाए। दूसरी शर्त अल मुताबा, आप जो काम करने लगे
ये ना देखें आप हाशमी हैं, ये ना देखें आप कुरैशी हैं, ये ना देखें आपका खानदान बड़ा अजीम है, ये ना देखें मेरा मसलब क्या है, ये ना देखें मेरा मजहब क्या है। मेरे भाई आप ये देख लें कि मैंने जिस नबी का कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसमें तो इख्तिलाफ नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैंने ला इलाहा तो पूरा कर दिया, तौहीद को मान लिया, मैंने शिरक का इनकार कर दिया, मैंने रिया और नमूद से तौबा कर ली, मेरा अमल सही हो गया। लेकिन कलमे की दूसरी शिक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये पूरी हो रही है कि नहीं, इसको कहते हैं मुताबात कि इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए इखलास के साथ, लेकिन तरीका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बंदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को लेना, दुनिया में और तरीकों को लेकर के कहीं दूर ना हो जाना। आपको इल्म है, मैं एक मिसाल देके अपनी बात को खत्म करता हूं, वगरना इस मौजू पे बड़ी रिवायतें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, लोगों जिसने कोई अमल किया उस पे हमारा मामला नहीं, वो हमारा तरीका नहीं, हमारे मेयार और उसपे नहीं, वो रद्द है, मरदूद है, बातिल है, कोई कीमत और उसकी उजरत नहीं। कुछ लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर बीवियों के पास आए, एक तड़प लेके आए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे बंदे हैं, महबूब बंदे हैं, उनके गुनाह भी नहीं। तो अल्लाह ताला ने जब उनको सारे मामले माफ किए हुए हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी इबादत करते हैं, हम आपके दिन को तो जानते हैं, रात के मामले में जरा घर से पूछे आप क्या करते हैं। बीवियों ने बताया, कहने लगे हो भाई हम तो कहीं के नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी अजीम हस्ती होकर के इतनी मेहनत करते हैं। एक ने जज्बे रात में आकर के क्या कहने लगा अकीदत के साथ कि देखो आज के बाद मैं नमाजें ही पढ़ता रहूंगा, सोऊंगा नहीं, उसल्ली वाला अरकुद। दूसरे ने कहा ठीक है, अगर तूने ये फैसला किया है ना तो मैं रोजे ही रखूंगा, कभी इफ्तार नहीं करूंगा, हमेशा रोजा रखूंगा। तीसरे ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख्शी हुई जात हैं, अल्लाह ताला ने उनको यूं ही जन्नत अता करनी है, बड़े बुलंद मुकाम हैं, तो मेरा मामला क्या है, वो सारी रात इबादत करते हैं, उनके कदम सूझ जाते हैं, मैं कहां। उसने कहा ला तज़व्वजुन निसा, मैं सारी सारी रात खड़े होकर क़याम करूंगा, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात पहुंची, आपको खुश होना चाहिए था कि मेरे बंधु ने कितने अच्छे नेकी का, अच्छे मामले का, काम का पैमान किया है, वादा किया है, अहद किया है, लेकिन आप खुश होने की बजाय नाराज हुए। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं था, मुताबत नहीं थी, आपका उसवा नहीं था। आपकी आंखें सुरख हैं, मस्जिद में आते हैं, मिंबर पे चढ़ते हैं, कहते हैं माँ बालू अक़वामिन, ऐसे लोगों का नाम लेना भी आपने बर्दाश्त नहीं किया। फरमाया माँ बालू अक़वामिन, ऐसे लोगों का क्या हशर होगा, क्या मामला होगा, उनका क्या हाल होगा, क्या बनेगा ऐसे लोगों का। माँ बालू अक़वामिन यक़ूलूना किदा व किदा, जिनकी बातें सुनने के मुझे यूं यूं मिली हैं, ऐसे ऐसे कहते हैं वो। किसी ने कहा मैं नमाज पढ़ूंगा, किसी ने कहा मैं सारी उम्र रोजे रखता रहूंगा, इफ्तार नहीं करूंगा, किसी ने कहा मैं शादी ही नहीं करूंगा। देखो लोगों, मैं नबी हूं और तुम में सबसे ज्यादा अपने रब से डरता हूं। इन्नी अख्शाकुम लिल्लाह, मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह की खशियत और तकवा रखने वाला हूं। अत्काकुम लहू, लेकिन ये बात ज़हन में रखो, आना उसल्ली व अरकुद व असूम व अफ्तिर, मैं नमाज भी पढ़ता हूं, सोता भी हूं, क़याम भी करता हूं, नींद भी करता हूं, मैं इसी तरह रोजे भी रखता हूं और कभी छुट्टी करता हूं, इफ्तार भी कर लेता हूं। वा तज़व्वजुन निसा, मैंने औरतों से शादी भी कर ली है, मैं दीन पे भी अमल करता हूं, दुनिया भी संभाली है। मन राग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत को छोड़ दिया वो मेरी उम्मत में से नहीं। भाइयों सोचिए जरा, तन्हाई में बैठ के आप अपने अपने गिरेबानों में जान के, ये कौन लोग थे सहाबा किराम थे, इनकी नीयतों पे कुछ शक हो सकता है, इनकी सोच पे कुछ शक हो सकता है, कितनी अच्छी सोच, दीन के अमल करने की सोच और अच्छा अमल करने की सोच, लेकिन आपने ये कह करके मरदूद कर दिया, बल्कि उम्मत के अंदर मानने के लिए आप तैयार नहीं। मन राग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, वो मेरे में से नहीं, मैं उसमें से नहीं। मेरे भाई ये क्यों कहा? इसलिए कि नमाज तो थी ठीक है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला तरीका नहीं। आज हमें सोचना है कि नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी नमाजों के नाम तलक वो नहीं रहे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के थे। नमाज नबवी न रही, हमने कहीं नमाज हनफी बनाई, कहीं नमाज मालिकी बनाई, कहीं नमाज शाफी बनाई, कहीं नमाज हंबली बनाई। हमने तो दीन को दूसरे नामों में लगा दिया। हमारा तो दीन ही वो न रहा जो दीन नबवी था, जो नमाज नबवी थी, जो रोजा नबवी था, जो तरीका नबवी था, जो उसवा रसूल था। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना की बातें भूल गए। भाइयों, इसलिए जिस अमल के अंदर अल्लाह ताला के लिए इखलास ना हो, तौहीद ना हो, शिरक का इनकार ना हो, रिया से दूरी ना हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक वो काम ना हो, अल्लाह ताला उस काम को पसंद नहीं करते, मरदूद करार दे देते हैं, मुंह पे मार देते हैं, रद्द कर देते हैं, उसकी कोई कीमत नहीं पड़ती। जैसा कि इन दोनों सूरतों के अंदर अल्लाह हर 8वें दिन आपको इस बात का पैगाम पहुंचाते हैं। अल्लाह ताला ने जिनको समझ देनी है वही समझ सकते हैं, और खुशकिस्मत है वो आदमी कि जिस पे हक जाहिर हो उसको पहचान ले और उसके बाद उसको मान ले और उसके सामने झुक जाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, ये आप भाइयों के लिए
اس طرح کے عنوانات اگرچہ ان میں کچھ چیزیں آپ بھائیوں کے لیے کچھ بھائیوں کے لیے نئی بھی ہوتی ہیں، کچھ باتیں بھی سخت ہوتی ہیں، لیکن یہ سختیاں میری کوئی آپ سے نہ عداوت ہے نہ دشمنی، نہ میں نے آپ سے کچھ لینا ہے نہ آپ کچھ دے سکتے ہیں، ہماری دینے والی ذات ایک اللہ ہے۔ ہاں اتنا ہے، ایک دل میں جو خلش اور تڑپ اور آپ سے پیار اور محبت جو ہوتی ہے، ایک دل کے اندر جو ایک خالص یہ خیال ہے کہ جتنے بھائیوں تک یہ دعوت پہنچ سکے پہنچانا ہمارا فرض ہے۔ وما علیک الا البلاغ المبین، بات کو سمجھا دینا، بات کو پہنچا دینا، یہ نبیوں کا بھی فریضہ رہا اور اللہ نے یہی بتایا، لست علیہم بمسیطر، ڈنڈا دے کے اللہ نے نہ کسی نبی کو بھیجا کہ ان پہ زبردستی مسلط کر، اور نہ ہمیں یہ حکم ہے، ہمارا کام حق بات کو پہنچانا ہے۔ باقی یہ اللہ کی طرف سے کسی بھائی کو توفیق ہو تو وہ بڑی خوش قسمت ہستی ہے کہ جس کو اللہ دنیا میں رہتے ہوئے اس تھوڑی سی زندگی میں مہلت دے اور پھر اس کو توفیق دے دے کہ وہ صحیح بات پہ سوچے، پرکھے اور کتاب و سنت کی طرف آئے، اور جمود سے اور ایک جگہ پہ اڑے رہنے اور ڈٹے رہنے سے اور کتاب و سنت کے خلاف ہمیشہ کے لیے محاذ کھولنے سے اللہ اس کو بچا دے۔ یہ مالک کی مرضی ہے، مولا کا کام ہے، اور اس کی توفیق سے سارا کچھ ہوتا ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔